mics. All of you, please switch off your cameras and mics. I'm going to start with the presentation. Is my screen visible to all of you? Good evening. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Who has joined? Tanvi, how are you, baby? Good evening. Good evening. Good evening. Chalo, I'm going to start with the class. Okay? How are you? I'm good. I'm good. God bless you, baby. I'm good. Thank you for asking. Good evening, Tanvi. Good evening, Tanvi, baby. Okay, so I'm going to start with today's story. Today's story, the name of today's story is Hansel and Gretel. You can see on the screen. Hansel and Gretel actually is the story of a sister and brother. Hansel means brother and Gretel means sister. It's a German story based upon two kids, fine. Based upon a brother and sister, and they have their father and stepmother in the story. And the plot of the story is laid in the country of Germany. जर्मनी बेटा कंट्री है, उसकी स्टोरी है. और इस स्टोरी में जो दो बच्चे हैं, दो किड्स हैं, जिनके नाम है हैंसल और ग्रेटल. हैंसल लड़के का नाम है, ग्रेटल लड़की का नाम है. एंड दे आर स्टेइंग विद देयर फादर एंड स्टेप मदर. हैंसल और ग्रेटल जो है वो अपने पापा और अपनी स्टेप मदर सौतेली जो माँ है उनके साथ रहते हैं. एंड हैंसल एंड ग्रेटल जर्मनी से हैं बेटा. ये जो स्टोरी है दिस इज फ्रॉम द लैंड ऑफ जर्मनी. सो आप देख सकते हो ऑन माय स्क्रीन वी हैव टू किड्स. हैंसल, ही इज वेयरिंग अ ग्रीन कैप, and then we have a Gretel. Gretel is wearing pink and blue dress, and she's a beautiful girl, and Hansel is a boy. Now that's the house of Hansel and Gretel. Once upon a time, long ago, there lived two kids named Hansel and Gretel in a small house in a forest. बहुत पुरानी बात है बेटा. एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में, एक छोटे से घर में हैंसल और ग्रेटल नाम के दो बच्चे रहते थे. उनके जो पापा थे, he was a woodcutter. The father of Hansel and Gretel was a woodcutter. They were a very poor family. Hansel और ग्रेटल बेटा उनकी फैमिली बहुत पुअर थी. Their mother has passed long back. बहुत सालों पहले हैंसल और ग्रेटल की जो मामा थी उनकी डेथ हो चुकी थी. फाइन. और उनके जो पापा थे, he was a woodcutter. He used to cut trees in the forest, fine, and sell that wood, and even use that wood for cooking food in the house, for making other things as well. जो हैंसल और ग्रेटल के पापा थे, फाइन, वो वुड कटर थे. वो जंगल में से लकड़ी काटकर हैंसल और ग्रेटल के जो पापा थे वो जंगल में से बेटा लकड़ी काटकर गुजारा करते थे. He was a very poor man, fine, and they were all very poor, और उनको खाने के लिए बहुत कम मिलता था. And Hansel और Gretel के जो पापा थे, the father of Hansel and Gretel, he used to be very sad all the time, क्योंकि उनको खाने के लिए बहुत कम मिलता था. फाइन. और खाने के लिए बहुत कम मिलता था, वो सदा ही बेटा उनके पास खाने की कमी रहती थी. फाइन. And they have their stepmother. Stepmother is सौतेली माँ. Actually, Hansel और Gretel की mother जो थी, she has passed a long back. Fine. तो Hansel and Gretel's father remarried another female. उनके पापा ने एक और फीमेल जो थी उनसे शादी कर ली, किसी और लेडी से शादी कर ली, so that Hansel and Gretel को फिर से मामा का प्यार मिल सके. And this lady was a stepmother. Stepmother in the sense ये उनकी अपनी माँ नहीं थी, उनके फादर की सेकंड वाइफ थी.
This lady was from a very rich family, so that's why बेटा उनको इस घर में रहना पसंद नहीं था, क्योंकि हैंसल और ग्रेटल की फैमिली बड़ी पुअर थी एंड शी वाज अ वेरी कनिंग लेडी. बेटा जरूरी नहीं है कि हर स्टेप मॉम जो है वो बुरी हो. इट्स नॉट नेसेसरी. स्टेप मॉम बेटा सिर्फ नाम है, होती वो मदर ही है बेटा, और जरूरी नहीं है कि हर स्टेप मदर जो है वो बुरी हो. बट ये जो लेडी थी ये बुरी थी. शी वाज कनिंग, फाइन, and as she was from a rich family, she didn't like to stay in their house. इनको ना इन जो लेडी थी, इनको छोटे घर में रहना पसंद नहीं था. वो चाहती थी कि घर बड़ा सा हो, घर में खूब सारी फैसिलिटीज हो. So she was always teasing, fine, and cursing the father of Hansel and Gretel. वो सदा उनको कहती रहती थी, क्या मुझे बुरे से घर में रखा हुआ है, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, आप बहुत बहुत खराब हो. एंड हैंसल एंड ग्रेटल बड़े क्यूट से बच्चे थे, बट शी डिडंट लाइक देम. वो उनको भी पसंद नहीं करती थी, बिकॉज शी वांटेड कि जो सब कुछ है उसे ही मिले. सो शी ऑलवेज वांटेड टू गेट रिड ऑफ हैंसल एंड ग्रेटल. वो हमेशा चाहती थी, सदा चाहती थी कि हैंसल और ग्रेटल कहीं दूर चले जाएं और वो अकेली इस घर में रहे ताकि सब कुछ उसे ही मिले. So that lady, I mean, the stepmother of Hansel and Gretel, she was not a good lady. But one very important thing, every stepmother is not a bad lady. बेटा याद रखना अपनी लाइफ में, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी मदर की डेथ हो जाती है, एंड बेटा इन वेन, इन सर्कमस्टेंशियल सिचुएशंस कई बार फादर को रीमैरिज करनी पड़ती है. फाइन. सो इन दैट केस, फाइन, kids get a stepmom, but every stepmom is not a bad woman. But ये women bad थी. ये चाहती थी कि हैंसल और ग्रेटल कहीं दूर चले जाएं और वो अकेली इस घर में रहे. Now one night what she did was, हैंसल और ग्रेटल की जो मदर थी, one night she planned कि कैसे हैंसल और ग्रेटल से छुटकारा पाया जाए. How to get rid of Hansel and Gretel. One night when Hansel and Gretel they were sleeping, हैंसल heard something. हैंसल ने कुछ सुना. एक रात को जब वो दोनों सो रहे थे तो हैंसल ने कुछ सुना, और जब हैंसल को कुछ सुनाई दिया, ग्रेटल भी उसके उठने की आवाज सुनकर ग्रेटल also woke up. Gretel also got up. Now what did they heard? उन्होंने क्या सुना? Their parents were talking. Their father and their stepmother, they were talking. And stepmother was saying to Hansel and Gretel's father, we have no money left. There is no more food for us to eat. वो जो लेडी थी, उनकी स्टेप मदर, वो कह रही थी कि अब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे, हमारे पास खाना खाने के लिए भी बिल्कुल पैसे नहीं है, और ना ही हमारे पास खाना बचा है. Then father said, what? क्या किया जाए? तो ग्रेटल की, हैंसल और ग्रेटल की जो स्टेप मदर थी, उसने आगे से कहा, हैंसल एंड ग्रेटल कैन नॉट लिव हियर नाउ. हैंसल और ग्रेटल अब यहाँ पे नहीं रह सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है. दे मस्ट लीव आवर हाउस. और जो हैंसल और ग्रेटल के फादर थे, ये सुनकर उदास हो गए. उन्होंने कहा कि वो बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो हैंसल और ग्रेटल की मदर ने कहा, आई डोंट नो, वेयरएवर, आई डोंट केयर. उसने कहा मुझे नहीं पता वो कहाँ जाएंगे. आई डोंट केयर ऑल्सो, मैं केयर नहीं करती, वो जहां मर्जी जाए, बट अब वो इस घर में नहीं रह सकते. तो हैंसल और ग्रेटल के फादर ने आगे से कहा, दे आर वेरी स्मॉल, वी शुड नॉट लीव देम, दे नीड आवर केयर एंड नर्चरिंग. तो हैंसल और ग्रेटल के फादर ने कहा, वो बहुत छोटे हैं, उन्हें हमारे केयर की, हमारे प्यार की जरूरत है, वो कहाँ जाएंगे? देन इन रिस्पॉन्स द स्टेप मदर रिप्लाइड, वी मस्ट लीव देम इन द मिडल ऑफ द वुड्स. हम उन्हें जंगल में कहीं छोड़ आएंगे, अपने आप वो वहां पे बड़े हो जाएंगे. तो फादर ने कहा, नो, आई कैन नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं करूंगा. तो मदर ने कहा, आपको ऐसे करना ही पड़ेगा, वरना मैं इस घर से चली जाऊंगी. शी सेड, इफ यू नॉट डू इट, फाइन, आई विल लीव यू एंड आई विल लीव दिस हाउस. मैं ये घर छोड़ दूंगी, मैं आपको भी छोड़ दूंगी. नाउ हैंसल एंड ग्रेटल, दे वर लिसनिंग टू ऑल दिस कन्वर्सेशन. दे वर, बेटा, वो सारी बातचीत सुन रहे थे. ग्रेटल स्टार्टेड क्राइंग. ग्रेटल ऊंचा ऊंचा से रोने लगी कि अगर हमें ये जंगल में छोड़ आएंगे तो हम क्या करेंगे. तो ग्रेटल ने कहा कि अगर भैया, मैं इस घर से नहीं जाना चाहती,
अगर हमें मम्मी पापा जंगल में छोड़ आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे, हमें तो कोई जानवर ही खा जाएगा। तो हैंसल ने कहा, डोंट वरी, आई विल प्लान समथिंग। मेरी प्यारी बहना, मेरी प्यारी गुड़िया, तो बिल्कुल मत रो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, और हम दोनों साथ में हैं, इसलिए हम दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते, हम दोनों जंगल में कभी भी घूम नहीं सकते। देन शी सेड, ओके भैया। और जो हैंसल था उसने उसे कहा, मेरी प्यारी गुड़िया, आप सो जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। एंड ही कंफर्ट्स हर एंड मेक्स हर स्लीप। और जो हैंसल है, उन्होंने ग्रेटल को बेटा कंफर्ट किया, प्यार किया, और ग्रेटल सो गई। एंड एट द सेम टाइम हैंसल हैड अ प्लान। हैंसल को एक प्लान सूझा, एक उपाय आया बेटा। एंड हैंसल केम आउट ऑफ द हाउस। अब देख सकते हो इस पिक्चर में, हैंसल जो था वो घर से बाहर आ गया, एंड ही स्टार्टेड कलेक्टिंग पेबल्स। उसने बेटा छोटे छोटे से पत्थर, छोटे छोटे से पेबल्स थे, वो सभी पेबल्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए। फाइन, उसने उन सभी पेबल्स को अपनी पॉकेट्स में डाल लिया। उसने अपनी जो पॉकेट्स थी, he filled those pockets with those pebbles. Fine, उसने पेबल्स, जितने भी बार पेबल्स मिले उन्हें इकट्ठा कर लिया। He took his लालटेन outside. उसने बेटा जो नाइट लैम्प था उसको बाहर लेकर जितने भी पेबल्स उसे बाहर से मिले, घर के बाहर से मिले, उन्हें अपनी पॉकेट्स में फिल कर लिया, और वो आकर सो गया। Then next morning his father said, okay, we are going out. His father has no choice because their stepmother was not agreeing to keep them in the house. जो हैंसल और ग्रेटल के पापा थे, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि उनकी मामा बिल्कुल नहीं मान रही थी उन्हें घर से रखने के लिए। तो हैंसल और ग्रेटल के पापा ने हैंसल और ग्रेटल से कहा, all of us we are going for a family picnic, let's go. And Hansel and Gretel, they started going to family picnic with their parents. And you can see in the picture, Hansel and Gretel's father and mother, their parents are walking, and along with them Hansel and Gretel, they are walking towards the jungle to have a picnic. वो बेटा सब जंगल की तरफ चलना शुरू हो गए पिकनिक मनाने के लिए। और हैंसल was a very clever boy. Fine, हैंसल ने क्या किया, जहां जहां वो जा रहे थे, जिस रास्ते से वो जा रहे थे, हैंसल dropped pebbles all away the path, all through the path. सारे रास्ते में बेटा जो हैंसल थे, वो छोटे छोटे से पेबल्स जो उन्होंने गैदर किए थे एक रात पहले, फाइन, all the pebbles which he had gathered a night before, which he had collected a night before, he was dropping all the pebbles and making a trail of the path which they have followed through the jungle. जो पाथ उन्होंने फॉलो किया था जंगल में पिकनिक वाली जगह तक, हैंसल उस पाथ में बेटा एक एक करके छोटे छोटे पेबल्स फेंकते रहे ताकि उन्हें वापस जाने का रास्ता मिल जाए। Finally, they reached at some place in the middle of the woods, fine, and they started celebrating a picnic. You can see, उनके जो पापा थे, he lighted a fire, fine, and they started eating some good food. After some time, fine, when Hansel and Gretel, they were sitting and enjoying, Hansel's and Gretel's stepmother, she said to their father, let's go and collect some more woods from the jungle. उनकी जो मदर थी बेटा, स्टेप मदर, उसने उनके फादर से कहा कि चलो हम जंगल में से कुछ और लकड़ियां ले आए, जो आग है उसमें लकड़ियां कम है। और वो उठकर, फाइन, उसने हैंसल और ग्रेटल के फादर को अपने साथ लिया, एंड दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जंगल। वो जंगल की तरफ चल पड़े, और चलते 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 दे वैनिश्ड इन द जंगल। दे एक्चुअली बेटा डिसअपीयर्ड इन द जंगल। वो जंगल में कहीं छुप गए। उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने एक दूसरा रास्ता लिया जंगल में से और घर की तरफ निकल गए, लीविंग हैंसल एंड ग्रेटल इन द मिडल ऑफ द जंगल अलोन। हैंसल एंड ग्रेटल को जंगल में अकेला छोड़ दिया, और जो उनकी स्टेप मदर थी वो उनके स्टेप मदर को लेकर किसी दूसरे रास्ते से जंगल में से घर की तरफ चल पड़ी। नाउ हैंसल एंड ग्रेटल, दे वर वेटिंग फॉर द पेरेंट्स सिटिंग देयर। वो दोनों बेटा अपने पेरेंट्स की वेट कर रहे थे, सिटिंग ऑन द पिकनिक मैट, फाइन, and they were waiting for the parents to come back, but they never came back. And finally the night came, रात हो गई बेटा, और वो नहीं आए, और बच्चे डर गए। both of them, they were scared that why parents have not come. तो हैंसल को लगा कि सच में मेरे पेरेंट्स ने वही किया जो वो एक रात को डिसाइड कर रहे थे। they have left us in the jungle. Then both of them, when moon came, fine,
with the light of the moon, they started traveling back towards the house. With the light of the moon, with the rays of the moon, they started traveling back towards the house by taking the path which they had made by throwing pebbles on the way. So Hansel and Gretel, they followed the pebbles trail which he had made, fine, by to reach towards their home. So Hansel and Gretel started walking through the path which they have made with their pebbles, and finally they reached home. वो घर पहुंच गए. जब वो घर पहुंचे, when they reached home, Woodcutter was surprised. उनके जो पापा थे वो हैरान हो गए और खुश भी थे. वुडकटर आपको पता है ना बेटा, जो लकड़ियां काट कर बेचे, हम उसे वुडकटर कहते हैं, लक्कड़हारा भी बोलते हैं इसे हम. तो जो लक्कड़हारा था, उनके जो फादर थे वुडकटर थे, he was very glad to see them. Though he was shocked at the same time, but he was very very glad. वो सरप्राइज भी था, शॉक भी था, हैरान भी था, फाइन, लेकिन वो खुश भी था कि उसके बच्चे घर पे वापस आ गए. बट their stepmother was very very angry. उनकी जो stepmother थी वो बहुत नाराज थी. And she said, there is not enough food for all of us. कहती हमारे लिए तो ऑलरेडी खाना नहीं है, ये लोग फिर वापस आ गए. But she has no choice. उसने बच्चों को अंदर आने दिया, because वो सामने से कुछ नहीं कह सकती थी. सामने से she was always predicting that she is a very good mother, but from inside she always wanted them to leave the house. But she planned again to do something and to get rid of the kids. उसने बेटा फिर से कुछ प्लान किया so that कि वो उन बच्चों से छुटकारा पा सके. तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि कल वो फिर से जाएंगे and they leave Hansel and Gretel deeper into the woods. वो और भी ज्यादा घने जंगलों में उन्हें छोड़ आएंगे. And then she decided to lock the room of Hansel and Gretel so that Hansel cannot plan anything. What the stepmother did, she locked Hansel and Gretel into the room, fine, and she planned to leave them deeper into the woods, fine. But उनके father ने कहा, we should not do like this. We should not leave them deeper into the woods. They will get lost there and I will lose my kids that way. उनके father ने कहा कि ऐसे बेटा, ऐसे जो बच्चे हैं वो गुम जाएंगे और मेरे बच्चे खो जाएंगे. बट स्टेप मदर ने कहा वी मस्ट, बिकॉज देयर इज नो फूड, हमारे लिए भी खाने को कुछ नहीं है, फाइन, और हम उन्हें डीपर छोड़ कर आएंगे, हम उन्हें और भी घने जंगलों में छोड़ के आएंगे, सो दैट दे मस्ट नॉट फाइंड देयर वे बैक होम, ताकि उनको घर आने के लिए रास्ता ना मिले. सो हैंसल एंड ग्रेटल्स स्टेप मदर लॉक्ड द डोर so that they could not get out and collect the pebbles. And next morning, they again started going back. They again started going for picnic, and they went deeper into the woods. This time, Hansel did not have pebbles, but he started dropping the bread crumbs. उसके पास बेटा bread थी. उसने bread को अपनी pocket में डाल दिया. The bread which was given to Hansel during the morning breakfast. Hansel की मामा ने breakfast में जो bread serve की थी, Hansel ने वो bread खाई नहीं. He tucked that bread into his pockets. उसने वो जो bread थी बेटा अपने pockets में डाल ली, fine, और उसने उस bread को क्रैम करके रास्ते में फेंकना शुरू कर दिया. You can see in the picture, वो bread के छोटे छोटे pieces सारा रास्ता फेंकता आया, ताकि उनको वापस जाने के लिए रास्ता मिल जाए. Yes, ma'am. Yes, बेटा. Yes, बेटा. मैम इस स्टोरी में 2 plants बना रही है उनकी सेल मदर. क्या बना रही बेटा? 2 plants बना रही है उनकी सेल मदर. 2 plans मतलब? पहले वाला प्लान और ये दूसरा प्लान. पहला प्लान उसने बनाया, पहला प्लान तो फेल हो गया क्योंकि बच्चे घर वापस आ गए. अब उसने दूसरा प्लान बनाया. दूसरे प्लान में उसने सोचा कि वो बच्चों को और ज्यादा घने जंगलों में छोड़ आएगी. गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम. हाँ, वो और भी ज्यादा बेटा डीप ले गई वुड्स में उन्हें. बट जो हैंसल था वो बहुत वाइज था, क्लेवर था, इंटेलिजेंट था. तो वो बेटा वो सारा रास्ता छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स फेंकता आया, और फेंकते फेंकते
वो वहां पे पहुंच के जहां पे उनके पेरेंट्स उन्हें लेकर आए थे, डीप इनटू द जंगल. देन Hansel and Gretel's father said them to wait there. हैंसल और ग्रेटल के जो पापा थे उन्होंने हैंसल और ग्रेटल को कहा कि आप लोग वेट करो, हम पिकनिक फायर जो है वो लाइट करने के लिए वुड कलेक्ट करके लाते हैं. फाइन. तो फादर एंड मदर वेंट टू कलेक्ट वुड फ्रॉम द जंगल. फाइन. एंड दे लेफ्ट हैंसल एंड ग्रेटल देयर डीप इनटू द वुड्स. फाइन. एंड फ्रॉम देयर दे वैनिश्ड. वो जो थे ना बेटे उनके पापा और मामा, वो डिसअपियर हो गए जंगल में. और हैंसल और ग्रेटल वहीं पे वेट करते रहे. दे वर वेटिंग फॉर ऑल द डे एंड फादर एंड मदर डिडंट कम बैक. वो वापस नहीं आए, दोनों जने वापस नहीं आए. उन्होंने जंगल में से कोई दूसरा रास्ता लिया एंड दे केम बैक होम. एंड हैंसल एंड ग्रेटल दे वर वेटिंग ऑल द टाइम, ऑल द डे इन द जंगल. एंड फाइनली दे डिसाइडेड टू गो बैक होम by following the path of the breadcrumbs which Hansel has laid while coming in the morning. तो हैंसल ने डिसाइड किया कि जो ब्रेड क्रम्स के साथ उसने रास्ता बनाया था सुबह आते आते, उस रास्ते को फॉलो करते करते दे विल गो बैक होम. तो उन्होंने वो रास्ता बेटा ढूंढा और उस रास्ते से जाना शुरू कर दिया. बट व्हाट हैपेंड वाज birds had eaten all the breadcrumbs. breadcrumbs खाने वाली चीज थी. जंगल में जो छोटे छोटे बर्ड्स थे उन्होंने बेटा वो सारे ब्रेड क्रम्स खा लिए और उन्हें रास्ता नहीं मिला. एंड दे वर लॉस्ट इनटू द जंगल. फाइन. एंड दे वर वॉकिंग अ लॉन्ग वे बट दे वर लॉस्ट. वो बहुत लंबा रास्ता चलते रहे बट दे कुड नॉट फाइंड देयर वे बैक होम. दे वर लॉस्ट डीपर इनटू द वुड्स. नाउ इन द मिडल ऑफ द जंगल they found a beautiful white bird sitting on a tree. उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा white कलर का bird देखा जो कि ट्री के ऊपर बैठा हुआ था. And the voice of that white bird was very melodious. He was singing beautifully. वो जो melodiously जो white bird था बहुत मीठी आवाज में कुछ गा रहा था. उन दोनों को white bird बहुत पसंद आया. उन दोनों को उसका गाना भी बहुत पसंद आया. And white bird started flying. White bird ने उड़ना शुरू कर दिया. And both of them they started following that white bird. दोनों बेटा वो white bird के पीछे चलना शुरू हो गए क्योंकि वो तो गुमे हुए थे जंगल में. उन्हें तो कुछ याद ही नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है. बट उन्हें white bird की आवाज इतनी अच्छी लगी कि उनको ये भी भूल गया कि उन्हें घर जाना है. वो white bird की आवाज सुनते white bird के पीछे आ गए. And white bird बेटा उन्हें घर में ले आया. एक घर की तरफ चल पड़ा. तो जब वो पहुंचे they saw a beautiful house there which was made up of cakes, pastries, candies, fruits, sweets, biscuits, cookies. वो जो घर था बेटा, वो जो घर था if you see in the picture, वो बहुत खूबसूरत घर था. जिंजर ब्रेड का बना हुआ था, केक्स का बना हुआ था, क्रीम का बना हुआ था, कुकीज का बना हुआ था, स्वीट्स थी उसमें, फ्रूट्स थे, कैंडीज थे, पेस्ट्रीज थी. उन्होंने ऐसा घर कभी देखा ही नहीं था. वो बहुत सरप्राइज्ड और शॉक थे उस घर को देखकर. इफ यू कैन सी इन द हाउस, यू कैन सी जेम्स हैं, कैंडीज हैं, डोनट्स हैं, कुकीज हैं और घर बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी उसकी बेटा केक के जैसी ड्रेसिंग हुई हुई थी. कैंडीज थी वहां पे, आइसिंग हुई थी वाइट कलर की उसके ऊपर स्प्रिंकलर्स थे. उन्हें इतना अच्छा घर लगा कि वो घर के पास आकर उन्होंने कैंडीज को तोड़कर और केक की जो आइसिंग थी, क्रीम थी, उसे खाना शुरू कर दिया. खाना क्यों शुरू कर दिया बच्चों, बताओ मुझे. खाना क्यों? क्योंकि उनको भूख लगी हुई थी. हाँ, भूख लगी थी. बिकॉज दे वर लॉस्ट इन द जंगल. जंगल में वो घूम रहे थे, घूमते घूमते उन्हें भूख लग गई. फाइन. तो उन्होंने उस घर से जो कैंडीज थी, स्वीट्स थी, उन्हें तोड़कर खाना शुरू कर दिया. जब वो खा रहे थे तो उस घर में से एक ओल्ड लेडी, a very big fat and old lady came out of the house. When they were eating, fine, an old big and fat lady came out of the house and she said, who are you? आप कौन हो? आप मेरे घर से क्या क्या उठा के चीजें खा रहे हो? आप कौन हो? आप क्यों खा रहे हो मेरे घर से? Then Hansel and Gretel explained the whole story to that old lady.
फाइन. ओल्ड लेडी ने बेटा हैंसल और ग्रेटल को कहा कि आप क्यों खा रहे हो मेरे घर से. तो हैंसल और ग्रेटल ने सारी स्टोरी एक्सप्लेन की कि हमारे पापा मम्मी जंगल में खो गए थे. फाइन. हमने वो व्हाइट बर्ड देखा, हम भी जंगल में खो गए, हमारे पापा मम्मी जंगल में से कहीं चले गए और वी वर लॉस्ट इन द जंगल, हम जंगल में कहीं खो गए. हमने वहां पे एक व्हाइट बर्ड देखा और व्हाइट बर्ड का पीछा करते करते हम आपके घर तक आ गए. आपका घर बहुत डिलीशियस चीजों का बना हुआ था, बहुत टेस्टी चीजों का बना हुआ था, एंड वी स्टार्टेड ईटिंग those things from your house. Now that old lady, when she listened to the story of Hansel and Gretel, she felt very bad. She said, okay, they are kids. She let the kids inside the house. उसने कहा, आप मेरे घर के अंदर आ जाओ, please come inside my house and I'll serve you food. वो जो old lady थी, fine, उसने Hansel and Gretel को अपने घर के अंदर ले लिया. But बेटा जो उसका अंदर से घर था, वो बाहर जैसा नहीं था. The inside and outside of the house was very, very different. The inside of the house was dark and black. वो बिल्कुल अंधेरा था घर के अंदर, और एक बहुत बड़ा सा oven बड़ा हुआ था. Can you see? There was a big oven lying inside the house. Different type of bottles were there. Fine. एक different type of झाड़ू, एक different type of cap, डरावने से pumpkins, फाइन स्पाइडर वेब्स, कैंडल्स. अजीब सा घर था, एक केज था. आपको ये घर किसके घर जैसा लग रहा है? टेल मी किड्स. डरावना सा नहीं लग रहा ये घर? स्कैरी नहीं लग रहा है? भूत के घर जैसा लग रहा है. किसके घर जैसा घर लग रहा है? भूत के जैसा. यस, भूतिया. भूतिया, यस. दिस हाउस वाज हाउस ऑफ अ विच. बेटा ये एक विच का घर था, एक भूतनी का घर था. फाइन. और वो जो भूतनी थी, उसने स्कीम के साथ, उसने प्लान के साथ हैंसल और ग्रेटल को अपने जाल में फंसा लिया था, ट्रैप कर लिया था, और वो उनको ट्रैप करके अंदर ले आई. एंड शी सर्व देम ऑल द डेलिकेसीज. उसने बेटा उन्हें बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खिलाया. एंड हैंसल एंड ग्रेटल, दे हैव नेवर ईटन इन देयर लाइफ सच अ टेस्टी फूड. वो तो हैरान हो गए, इतना टेस्टी खाना. पेस्ट्रीज, cakes, chicken, fruits, different types of vegetables, fine milk, juice. इतना अच्छा खाना they have never eaten in their life, and they were very, very happy. उन्होंने बेटा tummy full खाना खाया. Fine. But they were surprised to see this condition of the house, the surroundings of the house, inside the house. वो घर का जो अंदर है ना, वो देखकर कुछ डर भी रहे थे. लेकिन they were very hungry and they have never eaten such a good meal in their life. तो उन्होंने पेट भर के टमी फुल खाना खाया. After that, that lady, old big fat lady, led them to a room which was having two beautiful and comfortable beds. बहुत खूबसूरत और comfortable beds थे बेटा. बहुत nice pillows and very well kept beds. इतने comfy beds थे कि उन दोनों को मजा ही आ गया. वो कभी ऐसे beds में सोए ही नहीं थे. And they were very happy sleeping in that room. वो बहुत खुशी because बहुत थक भी गए. Because they were lost in the jungle, they were walking since a very long time. So they were tired and they slept. Next morning, when they woke up, fine, they went out of the bedroom and they saw that lady was not there. They searched that lady everywhere and they found a door in that house. They found a door in that house. And when they opened the door, they found a big treasure of gold, diamonds, and coins and gold biscuits lying in that house. उन्होंने देखा जो घर था, वो जो कमरा था, वो जो रूम था, it was full of treasure. उस रूम में बहुत सारा खजाना, बहुत सारा गोल्ड था, डायमंड्स थे, गोल्ड कॉइन्स थे, और वो हैरान हो गए. एंड जो ग्रेटल थी, वो उस रूम में जाकर गोल्ड को हाथ लगाकर देखना चाहती थी, because the kids were very poor, so they were fascinated. They wanted to touch that gold and they wanted to see what does gold looks like, what do coins look like, what do diamonds look like. अभी वो ये सोच ही रहे थे कि वो उस रूम में जाए. Then that old big fat lady reached. वो जो डरावनी सी old lady थी, वो आ गई उसी टाइम. She reached and she asked, "What are you doing here?"
who allowed you to open this room? आपको किसने इजाजत दी इस कमरे को खोलने? आप किसकी इजाजत से अपने कमरे से बाहर आए? तो उसने बेटा वो बहुत चिल्लाई उनके ऊपर, उसने बहुत डांटा. एंड शी ड्रैग्ड हैंसल फ्रॉम हिज हेयर. उसने बेटे उसको उसके बालों से पकड़ लिया हैंसल को और उसे ड्रैग करते करते केज में ले आई और उसने हैंसल को केज में बंद कर दिया. एंड शी टोल्ड ग्रेटल कि अब हैंसल जो है इसी केज में रहेगा और हम इसको खूब खिलाएंगे पिलाएंगे और एक दिन मैं इसको मार के खा लूंगी. और वो बच्चे डर गए, ग्रेटल भी डर गई और हैंसल भी डर गया. उसने कहा कि मुझे बच्चों का जो मांस है, बच्चों का मीट बहुत पसंद है, मैंने इसीलिए तुम दोनों को पकड़ा है. मैं एक विच हूं, आई एम नॉट अ लेडी, और मैं अब हैंसल को मार के खाऊंगी. तो ग्रेटल वॉज वेरी स्केर्ड. ग्रेटल बहुत डर गई एंड शी ड्रैग्ड ग्रेटल एंड टुक हर टू किचन. वो ग्रेटल को ड्रैग करके खींच के किचन में ले आई और उसने कहा कि तू रोज खाना पकाएगी. ग्रेटल, आप रोज कुक करोगे और आप कुक करोगे और वो जो खाना आप पकाओगे वो मैं हैंसल को खिलाऊंगी. और हैंसल जब खूब मोटा ताजा हो जाएगा मैं उसको पकाकर खा लूंगी. तो बेटा जो ग्रेटल थी वो रोज खाना पकाने लगी और वो जो खाना था फाइन, वो जो लेडी थी वो हैंसल को दे देती थी खाने के लिए. जो हैंसल था वो भी बहुत क्लेवर और वाइज था. आपने देखा ही होगा बेटा, 2 बार उसने प्लान बनाया कैसे कि जंगल से वो बच के निकल सकते हैं, इसलिए वो बहुत वाइज था, बहुत क्लेवर था. हैंसल ने क्या किया? हैंसल डग अ लिटिल छोटा सा उसने गड्ढा. फाइन, he dug a little cave, you can say. हैंसल ने क्या किया? उसने छोटा सा गड्ढा जो था वो खोद दिया अपने केज में. नाउ वो जो केज था जिसमें हैंसल ने गड्ढा खोदा था, फाइन, व्हाट हैंसल यूज्ड टू डू वाज हैंसल यूज्ड टू पुट द फूड which used to give into that गड्ढा. जो उसने गड्ढा खोदा था, जो विच उसे खाना देकर जाती थी, हैंसल सारा खाना वो गड्ढे में डाल देता था. एवरी डे विच यूज टू सर्व अ वेरी गुड फूड. उसको एग्स देती थी, ब्रेड देती थी, चिकन देती थी, फ्रूट्स देती थी. वो सारा कुछ जो उसने वो गड्ढा खोदा था, फाइन, उसमें डालता रहता था. और ग्रेटल जो कुक करती रहती थी. फ्यू डेज पास्ट और विच ने देखा कि हैंसल जो है उसकी सेहत ही नहीं बन रही. हैंसल इज नॉट गेटिंग हेल्दी, रादर ही इज गेटिंग थिनर डे बाय डे. रादर वो दिन ब दिन पतला हो ही जा रहा है. फाइन, तो अब क्या किया जाए? उसने ग्रेटल को कहा तुम्हें कोई जरूरत नहीं है खाना बनाने की, जो हैंसल है मैं जैसा है उसे वैसे ही मार के पका के खा लूंगी. एंड शी ओपन्ड द केज, फाइन, एंड शी वेंट टू हैंसल एंड शी वेंट टू ग्रेटल. उसने कहा ग्रेटल को कि आप जाके अवन गर्म करो. हैंसल जैसा भी है, पतला है, जैसा भी है, मुझे आज उसे खाना ही खाना है, क्योंकि उसकी सेहत तो बन नहीं रही, वो हेल्दी तो हो ही नहीं रहा, पता नहीं खाना कहाँ जा रहा है. तो ग्रेटल जो थी बेचारी बहुत परेशान हुई. वो क्या करती? उसने जाके अवन चला दिया ऑन फुल हीट. और जो ओल्ड लेडी थी उसने कहा लेट मी चेक कि अवन गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है. उसने ग्रेटल को कहा आप चेक करो अवन गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है. तो ग्रेटल ने कहा मैं बहुत छोटी हूं, मैं कैसे चेक करूं कि अवन गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है. तो उसने लेडी को कहा आप खुद चेक कर लो. अब जो ग्रेटल थी बेटा वो भी बहुत वाइज थी, क्लेवर थी. उसके मन में भी एक प्लान आया. उसने ओल्ड लेडी को कहा मैं नहीं देख सकती कितना गर्म हुआ है कि नहीं हुआ, आप खुद देखो. तो विच ओपन द अवन. जितना वो डोर खोल सकती थी पूरे का पूरा उसने उसको ओपन किया और उसने अवन के अंदर देखना शुरू कर दिया कि अवन गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है. एंड ग्रेटल कलेक्टेड ऑल हर स्ट्रेंथ. ग्रेटल ने अपनी सारी ताकत जो बेटा वो लगाकर विच को अवन में पुश कर दिया. ग्रेटल पुश्ड हर इन द अवन एंड शी लॉक्ड द डोर. एंड जो विच थी वो चीखी चिल्लाई मुझे बाहर निकालो, निकालो, बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगी. बट ग्रेटल ने वो डोर नहीं खोला. And which got burnt, fine, and she died. You can see which is inside the oven. She got burnt and she died. You can see. Then
Gretel opened the drawer. She knew, उसको पता था कि केज की चाबी कहाँ पे है, केज की कहाँ पे है. उसने एक ड्रॉअर था, उसमें से केज की चाबी निकाली. She opened the cage. Fine. And then she freed her brother. She opened the door of the cage. और उसने ग्रैटल को उसने हैंसल को बाहर निकाला. ग्रैटल ने केज को ओपन किया और हैंसल को बाहर निकाला. Fine. And then they came out of the house. They came running out of the house. And as the house was made up of food, आपने देखा था कि हाउस किसका बना हुआ था बेटा? हाउस किसका बना हुआ था वो सारा हाउस? फूड का, केक्स का, कुकीज का, बिस्किट्स का, स्वीट का, हाँ. तो जो हाउस था वो सारा मेल्ट कर गया, बिकॉज जो ओवन था उसकी हीट ने उस सारे घर को मेल्ट कर दिया. धीरे 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 सारा हाउस मेल्ट हो गया. एंड हैंसल एंड ग्रैटल दे रैन आउट ऑफ द हाउस. They ran and ran and finally they reached a river. वो रिवर पे पहुंच गए. जब वो रिवर पे पहुंचे वहां पे उन्होंने एक स्वैन को देखा. आप देख रहे हो पिक्चर में थोड़ा सा स्वैन नजर आ रहा है. और उनको एकदम से ख्याल आया, it suddenly struck their mind that कि जब हम घर से आए थे तो हम इसी रास्ते से आए थे. हमने रास्ते में एक स्वैन को देखा था, रिवर भी आई थी. Then they started walking along with the river. वो रिवर के साथ साथ चलना शुरू हो. एंड आफ्टर अ लॉन्ग वॉक हैंसल एंड ग्रेटल दे फाउंड देयर हाउस. बहुत दूर दूर तक चलने के बाद हैंसल एंड ग्रेटल दे फाउंड देयर वे बैक टू देयर हाउस. उनको अपने घर का रास्ता मिल गया. एंड द फादर वाज वेरी ग्लैड एंड वेरी हैप्पी टू सी देम. उनके पापा बहुत खुश थे उनको देखकर. And he hugged them tight. He was very glad. He was very happy. And he was crying. He was saying sorry to Hansel and Gretel. उसने कहा, मेरे बच्चों मुझे माफ कर दो. आपकी स्टेप मदर जो थी उसने मुझसे जबरदस्ती आपको जंगल में छुड़वा दिया. प्लीज मुझे माफ कर दो. आई एम वेरी सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. उनके जो फादर थे उन्होंने कहा, आप मुझे माफ कर दो. आपकी स्टेप मदर ने मुझे जबरदस्ती की और मुझे आपको जंगल में छोड़ना पड़ा. आई एम वेरी सॉरी. आप लोग मुझे माफ कर दो. अब आपकी स्टेप मदर यहाँ पे नहीं रहती. शी हैज गॉन. क्योंकि मैं बहुत पुअर था और आपकी स्टेप मदर रिच फैमिली से थी और हमारे घर में बहुत कम फूड था. सो शी लेफ्ट मी. वो इस घर को छोड़कर चली गई है और मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की. उनके जो फादर थे उन्होंने हैंसल और ग्रेटल को कहा कि आपकी स्टेप मदर चली गई हैं. मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की जंगल में. I went so many times into the jungle to find you out, but I could not find. मैं आपको बहुत बार जंगल में ढूंढने के लिए गया पर आप मुझे जंगल में से नहीं मिले. फाइन. और आपकी स्टेप मदर भी चली गई हैं. तो मेरे बच्चों आप अब इसी घर में रहो. तो किड्स सेड, पापा हमें पता है आपका कोई कसूर नहीं है. हमें पता है कि जो स्टेप मदर थी उन्होंने जबरदस्ती की है. हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है. हम बस आपके साथ रहना चाहते हैं. तो फादर वॉज वेरी हैप्पी. एंड देन आफ्टर दैट जो हैंसल और ग्रेटल थे उन्होंने अपनी पॉकेट्स में से जूल्स, डायमंड्स और गोल्ड कॉइन्स निकाले. अब आप मुझे बताओ किड्स, ये गोल्ड कॉइन्स, डायमंड्स कहाँ से आए? वो जादूगर ट्रेजर से. हाँ बिल्कुल. जो विच थी ना बेटा, उसका जो ट्रेजर था, जब ये घर से भागे हैंसल और ग्रेटल, भागने से पहले फाइन they filled their pockets with diamonds and gold coins from that house. उन्होंने अपनी पॉकेट्स भर ली खूब अच्छे से जो गोल्ड कॉइन्स और डायमंड्स थे. और वो उन्होंने डायमंड्स और गोल्ड कॉइन्स अपने फादर को दे दिए. His father was shocked. उनके जो फादर थे वो शॉक्ड हो गए कि ये चीजें आपके पास कहाँ से आई, ये गोल्ड कॉइन्स कहाँ से आए. Then Hansel and Gretel narrated the whole story to their father. उन्होंने सारी स्टोरी सुनाई कि पापा जब आप और मामा चले गए थे हमें छोड़कर, तो हम आप लोगों को ढूंढते 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 एक विच के घर में चले गए. तो विच ने हमें मारने की कोशिश की, बट हमने विच को फाइन विद द प्लान, विद आवर इंटेलिजेंस, हमने विच को मार दिया. और विच के पास बहुत बड़ा ट्रेजर था. उसके ट्रेजर में से हम कुछ चीजें ले आए, कुछ गोल्ड, कुछ डायमंड्स ले आए. His father said, ये कुछ नहीं है, ये तो बहुत सारा है. इससे तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी. Then after that
His father said, इसके साथ अब हम पुअर नहीं रहेंगे. I'll be able to give you good food, good clothes and good education. अब मैं आपको पढ़ा लिखा भी सकूंगा, अब मैं आपको अच्छा खाना भी खिला सकूंगा, अब मैं आपको अच्छे अच्छे कपड़े भी पहना सकूंगा और अब हम खुशी खुशी रहेंगे. And after that, all of them, they lived happily ever after. So that was the story of Hansel and Gretel. Thank you all. अब मुझे ये बताओ, let me stop presenting my screen. Switch on your cameras, everyone, and tell me what can be the moral of this story. Ma'am, be brave and courageous. Yes, very, very important. We should be brave and we should be courageous. Ganvisha, according to you, what can be the moral of this story? Ma'am, I have two morals. मैम, एक तो हमें हमेशा समझदारी से काम करना चाहिए, हमें कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचना चाहिए. बिल्कुल. जो स्टेप मदर थी वो खराब थी, उसने बच्चों का बुरा सोचा. हमें कभी भी बच्चों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा ब्रेवरी से, इंटेलिजेंस से फाइन काम लेना चाहिए. विवान, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? मैम, we have to be brave and we have to be smart. Yes, smartness से काम लेना चाहिए. बिल्कुल. अर्नब, according to you, what can be the moral of this story? मैम हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. Yes, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए. झूठ किसने बोला अर्नब? मैम उसकी मदर ने, उसके पेरेंट्स ने उसको बोला ना झूठ. हाँ बिल्कुल, उनको बोला कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं, लेकिन वो पिकनिक पे नहीं जा रहे थे. एंड वो उनके साथ प्लान कर रहे थे कि दे लीव देम इन द मिडल ऑफ द वुड्स. वेरी राइट, वी शुड नेवर टेल अ लाई. नायरा, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट कैन बी द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? मैम, 1 मिनट प्लीज, आप तब तक किसी और की टर्न ले लोगे? सभी की टर्न हो गई, मैं बताती हूँ तब तक मॉरल ऑफ द स्टोरी. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, मुश्किल समय में हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए. देखो, हैंसल और ग्रेटल के ऊपर 3 बार मुश्किल का टाइम आया. दे फेस डिफिकल्टी 3 टाइम्स. 3 बार आया ना मुश्किल का टाइम बेटा. पहली बार जब उनके पेरेंट्स उन्हें जंगल में छोड़ने गए तो हैंसल ने क्या किया? पेबल्स यूज किए. दूसरी बार उसने क्या यूज किया? ब्रेड के पीसेस. ब्रेड के पीसेस, यूज किए. तीसरी बार जब मुश्किल का टाइम कब आया? जब विच के जाल में फंस गए, वो विच के प्लान में फंस गए, तब ग्रेटल ने अपनी इंटेलिजेंस, अपनी स्मार्टनेस को यूज किया. फाइन. और उसने क्या किया? उसने विच को किस में फेंक दिया? ओवन में. हॉट ओवन में, कि विच खत्म हो जाए. अच्छा नायरा, ओके, टेल मी व्हाट मॉरल डू यू हैव? हमें कभी भी केले नहीं जाना चाहिए. और मेरे पास एक और मॉरल है. क्या बेटा? उसके मम्मी पापा को उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए था, गंदा नहीं सोचना चाहिए था. बिल्कुल बेटा, बिल्कुल. हमेशा पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचना चाहिए. दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचना चाहिए. और जो स्टेप मदर थी वो बेटा बैड थी, इसलिए उन्होंने बुरा सोचा. उनके फादर को उन्होंने जबरदस्ती की, तो बेटा पर क्या कर सकते थे? क्योंकि उनके फादर का कोई बस ही नहीं चला. He could not do anything for his kids, isn't it? So tell me, did you like the story? आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हैंसल और ग्रेटल की? Yes ma'am. ब्रेव बनो, वाइज बनो, हमेशा ब्रेव बनो, वाइज बनो. और वी शुड ऑलवेज फॉरगिव. देखो, हैंसल और ग्रेटल ने अपने पापा को क्या कर दिया? माफ कर दिया, फॉरगिव कर दिया. Isn't it? माफी देना बेटा सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है, किसी को माफ कर देना. ठीक है, चलो आज की ग्रुप फोटो लेते हैं. स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन. आज हमारा लास्ट सेशन है. अब फॉर 2 months 3 months मैं कोई सेशन नहीं लूंगी. विंटर्स में सेशन शुरू करेंगे. मैं थोड़ी सी बिजी हूं बिकॉज ऑफ माई वर्क. फाइन. एंड वील स्टार्ट आवर क्लासेस अगेन इन November.
फाइन. फॉर सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हम क्लासेस नहीं लेंगे. अब हम क्लासेस नवंबर में शुरू करेंगे. तब तक अब स्कूल्स भी खुलने वाले हैं. तब तक आप खूब खूब पढ़ाई करना, खूब खूब मेहनत करना, अच्छे अच्छे बच्चे बनना और मुझे मिस करना. मुझे मिस करोगे आप लोग? थोड़ा थोड़ा यस मैम, यस मैम, यस मैम. थोड़ा थोड़ा सा. चलो ग्रुप फोटो लेते हैं. गाना भी सुनाना. हाँ, आज का गाना, कल इंडिपेंडेंस डे है ना, तो हम आज का गाना भी सुनेंगे. Okay, so that was my last storytelling session for today. I really enjoyed your company. मुझे तुम लोग इतने अच्छे लगे सभी. मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी. पर हम ग्रुप के थ्रू बात करते रहेंगे. आपका जब भी बात करें मेरे साथ मन करने के लिए, यू कैन मैसेज मी इन द ग्रुप. ग्रुप है ना हमारा, आप उसमें मैसेज कर सकते हो. यस मैम. और बस कुछ चीजें, मामा पापा की बात हमेशा माननी है. अच्छे बच्चे बनना है, खूब पढ़ाई करनी है. ओके मैम. गुड चिल्ड्रन बनना है, गुड स्टूडेंट्स बनना है और हमेशा वाइज बनना है, इंटेलिजेंट बनना है. Let me stop the recording.